Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope that all of you are doing well in your homes, and also expect that you would have kept yourselves indoors because that is the only way to get rid from this pandemic, my dear students. You know, dear students, I have been repeatedly telling you, I must say requesting you to keep yourselves indoors, to confine yourselves to your homes, give more and more time to your studies. And inshallah, I expect that you are following the same, you are following my instructions, you are following my guidelines, because I know you are enough mature students, you can differentiate what is right and what's wrong. So dear students, we need to do the same until we may get rid from this deadly virus, dear students. So without wasting your too much time, let me come straight towards our today's topic, that is written on your board, preposition. My dear students, we have almost finished our T2 syllabus as well, but we have a grammar portion which is to be taught to you people now. And preposition जो है ये भी उसी में से एक कड़ी है, उसी की एक कड़ी है, उसी का एक पार्ट है. I must say कि this is the part of your grammar section. लेकिन अगर हम देखें preposition जो है, you have read it before, you have read it in your 7th classes, you have read it in your 6th class as well. लेकिन let's repeat it once again for you in today's topic. My dear students, I need your eyes, I need your ears for 10 minutes, please. I need your concentration. ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी आंखें चाहिए. I mean to say कि you need to focus your eyes towards me, you need to focus your ears towards my lectures, towards my audio, I must say, so that you may understood what I am delivering to you people. अगर हम देखें preposition की अगर हम बात करें, preposition, two words are here. Preposition. Position means, for example, my position is this. I am standing up, for example. या मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये मेरी position है. लेकिन किसी position से पहले और कोई चीज लगाना. उस पोजीशन से पहले क्या था तिम ब्रोथी क्या था. फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रीपोजिशन को डिफाइन करूं, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स व्हिच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. मगर क्या प्लेस करा नाउन तो प्रोनाउन्स ब्रोट टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ताकि इम नाउन यह हावान इमच रिलेशनशिप या इम प्रीपोजिशन डिफाइन करा रिलेशनशिप एक नाउन की और प्रोनाउन की विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. Yeah, B, let me repeat it once again. Preposition are the words which are placed before noun or pronoun, which are positioned before noun or pronoun to show its relationship with other part of the sentence. That means, अगर मैं उसको उर्दू में डिफाइन करूँ, उर्दू में इसको मैं आप लोगों को बोलूँ, तेले गोई कि preposition गई preposition उन अल्फाज को कहते हैं, prepositions गई तम अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करे, उनके उस रिश्ते को डिफाइन करे जो बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस है. यानी कि ये सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. पत एक पार्ट यानी कि यूसी आत्मज ये नाउन या प्रोनाउन है, तिमच रिलेशनशिप क्या छ बिकिस पार्ट ऑफ सेंटेंस से इट डिफाइन्स इट. कुछ डिफाइन करा इट, यानी कि प्रीपोजिशन से डिफाइन करा. फॉर एग्जांपल, some of the examples of preposition are in, inside है, outside है, between है, through है, beneath है, above है, under है. These are some of the examples of preposition. For example, I am staying in my room. In my room, room अगर हम देखें, room itself is a noun. That means कि मैं अपने कमरे के अंदर हूं, या I am inside my room. यो जो माई रूम है या आई एम है, इनकी रिलेशनशिप डिफाइन कौन करता है? इनसाइड. एत में पता कि बुश कमर्स में भी दिस इज प्रीपोजिशन. या आई एम स्टेइंग आउटसाइड माई हाउस, मैं अपने घर के बाहर बैठा हूं. हाउस इज ए नाउन, तो ये हाउस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ डिफाइन करता है. इसकी रिलेशनशिप कौन? आउटसाइड को. आउटसाइड क्या है? इस फिर प्रीपोजिशन. यहां पर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखे हैं. फॉर एग्जांपल, ऑन, इनसाइड, बिसाइड, विद, इन, टू. इतने ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल. मैंने आपको बोला कि अंडर है, एबोव है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इन है, एट है, बिटवीन है, अंडर, एमंग है, थ्रो है.
These are some of the examples of prepositions. तो ये रहा आपका preposition, मैंने आपको define कर दिया आपके सामने. फिर we have different types of prepositions. The first one is preposition of, अगर यहाँ पर आप SPATIAL, you can read it in two ways. एक तो आप स्पेशल भी बोल सकते हो उसको, या इसको आप स्पेशल भी बोल सकते हो. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. गो वो प्रीपोजिशन जो रेफर करते हैं किसी प्लेस को, जो रेफर करते हैं किसी प्लेस को, या रेफर करते हैं किसी पोजीशन को या प्लेस को, या प्लेस को और पोजीशन को जो रेफर करें, वी कॉल सच प्रीपोजिशंस एज, वी कॉल सच वर्ड्स एज प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल. मैं स्कूल की ओर दौड़ रहा हूं. रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल. स्कूल क्या है? नाउन है. दैट मीन्स दिस टूवर्ड्स हैज बीन यूज्ड बिफोर नाउन. मगर ये टूवर्ड्स यूज डिफाइन का रिलेशनशिप. मगर ये टूवर्ड्स क्या, ये डिफाइन करता है मेरी पोजीशन को. मेरी पोजीशन क्या है इस वक्त? आई एम रनिंग, मैं दौड़ता हूं. वो ये बना प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके. ऑन है, इन, इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, अबव, अंडर. दीज आर ऑल प्रीपोजिशन. मगर केम टाइप छो प्रीपोजिशन स्पेशल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर बिहाइंड एक एग्जाम्पल है. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस बिहाइंड फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में पढ़ते हैं. बुझ मना देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड बिहाइंड आवर स्कूल. हमारे स्कूल के पीछे प्लेग्राउंड क्या है? नाउन है. गो सिन स्कूल पतकिन. ये क्या है? ये एक प्लेस को इस वक्त आइडेंटिफाई करता है. ये प्लेस को रेफर करता है. सिन स्कूल पतकिन छु अख बोड़ बार क्रिकेट फील्ड या बोड़ बार मैदान. गो बिहाइंड या ब्याक थे in front of. It also refers to a place. ये किमिच टाइप preposition of special relationship. अगर वो वन, we have a big swimming pool in front of our school. हमारे स्कूल के आगे एक स्विमिंग पूल है. कोई स्विमिंग पूल क्या है? अतस we have swimming pool in front of our school. क्या है? नाउन. को स्कूल ब्रोड शुक्र इस्तेमाल है in front of. in front of क्या है? इट्सल्फ शाबाश. इन फ्रंट ऑफ हमारा यहां पर है प्रीपोजिशन, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन इन प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. या फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है अंडर है. आई एम स्टिंग अंडर द ट्री. मैं दरख्त के नीचे बैठा हूं. या एबो है. फॉर एग्जांपल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबो द ट्री. ट्री क्या है? नाउन है. को ये एबो जो है ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया है. इट रेफर्स या इट आइडेंटिफाई करान इमस बर्ड्स पोजीशन. ये क्या करा वकिनस ये वुडान मगर किम पे कुल पे. गो तम वर्ड्स यम डिफाइन आसन करान या यम रिप्रेजेंट आसन करान कुन चीज या कुन नाउन या प्रोनाउंस प्लेस क्या तिम या पोजीशन क्या तिमन वना प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. सो आई होप कि आप लोगों को ये टाइप इसका समझ में आया होगा. उसके बाद है हमारा दूसरा टाइप, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन तम वर्ड्स यम रेफर करान किसी मूवमेंट को या रेफर करते हैं किसी डायरेक्शन को. वी कॉल सच काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस एज प्रीपोजिशन डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, इनटू, टुवर्ड्स या थ्रो है. यहां पर फॉर एग्जांपल इनटू है. मैं वन कि फॉर एग्जांपल गिलास मज आब. आई पोर्ड अ वाटर इनटू द गिलास. गिलास क्या है? नाउन. इनटू कोर में एम्ब्रो इस्तेमाल. गो इनसेट गो ये कि मूवमेंट आब त्रो में आतमज. गो तम वर्ड्स यम रेफर आसन करान कुन मूवमेंट्स कुन या कुन डायरेक्शन कुन. गो तम तिमन छ वना इस प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. या इथे पर आई एम रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल. ये भी एक इसकी एग्जांपल है. या थ्रो. थ्रो इज वन बाक एग्जांपल ऑफ. We walk through the forest to reach the school. हम जंगल से गुजरे. Is right through the forest. Forest क्या है? ये नाउन है. नाउन से पहले मैंने इस्तेमाल किया थ्रो. इस पर जंगल में पकुन स्कूल वात न खतर. गो पकुन. It is direction. गो ये डायरेक्शन डिफाइन करा. गो ये थ्रो यूज ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. सो आई एक्सपेक्ट कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा. उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. यानी कि वो प्रीपोजिशंस, वो वर्ड्स या वो प्रीपोजिशन जो रेफर करे टाइम की ओर या ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. मैं कल से काम कर रहा हूं, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, बहुत परस पे काम कर ये या टाइम जो वन वनस. फॉर एग्जांपल, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर 6 PM. गो बिफोर जो है ये क्या बन गया यहां पर? ये प्रीपोजिशन बन गया. लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इथे फॉर एग्जांपल, अराउंड है, एट है, इन, बाय, फ्रॉम, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, एटसेट्रा. दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, आफ्टर.
आई विल कॉल यू आफ्टर 5 PM, मैं आपको 5 बजे के बाद कॉल करूंगा। ये टाइम डिफाइन करता है, ये टाइम को रेफर करता है। अच वन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये अच वन इसको हम ये ड्यूरेशन भी रेफर करता है। या आई विल कॉल यू आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। आफ्टर गो यह गो इथे प्रीपोजिशन टाइम। फॉर एग्जांपल कुछ साथ करा फॉर, आई एम हियर, I came here for you, you गो प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले मैंने उसको इस्तेमाल, मैं यहां पे आया आपके लिए आया। गो यहां पर मैं इस्तेमाल करता हूं ये you जो है, सॉरी I came here for you, for को मैं प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इस जो for है ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, या सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इसको मैं कह सकता हूं। डायरेक्शन भी ड्यूरेशन हम इसको कह सकते हैं, और दूसरा नाम। इसी तरह से since, I am working since morning, मैं सुबह से काम करता हूं, सुबह से मैं काम करता हूं। since morning वो ये क्या है, टाइम को रेफर करता है। ये जो नाउन मॉर्निंग है, नाउन जो है, नाउन से पहले मैंने since का इस्तेमाल किया। गो ये since बना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। गो तेल तुम प्रीपोजिशंस जिम रेफर आसन करा टाइम को या ड्यूरेशन को, या हम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। We call such prepositions as preposition of time. Some of the examples have been given for you. For example, यहाँ पर है around, मैंने आपको पहले बोला around भी है, at है। अभी हम एक और एग्जाम्पल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहु फोर्ट आपने 7th में पढ़ा होगा। बहु फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन अराउंड 3000 years ago। 3,000 वरी ब्रो, ओह अराउंड 3000 years ago। गो इसका मतलब ये टाइम को रेफर करता है, ड्यूरेशन को रेफर। 3,000 वरी ब्रो, गो अराउंड क्या बनाया था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो these were some of the examples, these were some of the types, या these were the types of preposition। preposition यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, इसके कुछ टाइप्स भी हैं with examples। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैच, हाँ ऑन भी एक है, किसका प्रीपोजिशन टाइम। उसके माना वी हैव मैच ऑन ट्यूसडे, वी हैव अ मैच ऑन नेक्स्ट संडे। ऑन जो है हमारा मैच है दूसरे रविवार को या मंडे को या ट्यूसडे को, तो ऑन क्या बन जाए, ये भी टाइम को रेफर करता है। बोर दस में गसन वर्ड, बोर दस में उन, बोर दस में मैच। गो ये ऑन यूज ये बना इट्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। गो दीज यू कैन यूज दीज एग्जांपल्स जो हैं अनटिल टिल, आप इनको एक सेंटेंस भी बना सकते हो। तो ये फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कुछ, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप कुछ, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कुछ, ये आप खुद भी देख सकते हो विद एग्जांपल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू राइट दीज टाइप्स एंड यू नीड टू राइट द प्रीपोजिशन जो है इसकी डेफिनेशन है। यू नीड टू राइट दिस ऑन योर नोटबुक। यू नीड टू मेंटेन योर होमवर्क प्रॉपरली डियर स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ लिखने का काम नहीं करना है, इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी देखना है कि हमें क्या पढ़ाया गया है, आपको रिसाइट करना है। इफ मैंने कहा ना, मैंने आपको बार बार बोला, देयर मे बी फ्लॉज, देयर मे बी शॉर्टकमिंग्स इन माय लेक्चर, बट इंशाल्लाह विल बी ओवरकम। इसको हम ओवरकम करेंगे विद, बिकॉज दिस इज आवर मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार हम वीडियोस के थ्रू क्लास दे रहे हैं, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, बट इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तिकाज गुंजाइश प्रत कुन साथ इंसानस गुंजाइश हेचनुच सीखने की, तो हमें भी, मुझे भी, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास भी टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का। बट आई नीड योर कोऑपरेशन, आई नीड योर टाइम, आई नीड योर सपोर्ट इंशाल्लाह। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग दोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो होप यू वुड हैव गॉट इट। हाँ, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स। अपने अंदर, अपने दिमाग में इस कंफ्यूजन को मत रखिए, बिकॉज इट विल क्रिएट अ पैनिक, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। So ask your questions freely. Feel free to call or text me at any time so that I may help you, I may guide you. तो इसी के साथ मैं आज का जो ये लेसन है ये कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए you need to take care of yourself, you need to take care of your families, and one more thing is that you need to remember me in your prayers. You need to remember whole Muslim Ummah in your prayers, ताकि we may get rid from this pandemic, we may meet very soon। इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की दुआ जल्दी कबूल भी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे अलविदा लेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।